Okay, so let us start today's session. So coming to our alphabetical issues, A to Z health issues. The first is A for acidity. But today I want to add something more to this A, anti-aging yoga. So we all are aging. हम सबकी age बढ़ रही है, wrinkles आएंगे, acne, scars, everything will come with age. तो हम age को reverse तो नहीं कर सकते हैं of course, but we can definitely control our age on the face through yoga. So हम face के लिए creams use करते हैं, इतने सारे treatments try करते हैं. So why not give yoga a try? So today we all will do some simple face anti-aging yoga exercises. Okay, so we'll start with the first exercise for today's session. So it is, you have to fill in air in the mouth. मुंह में हवा भरनी है और 2 fingers को lips पे रखना है. Okay, and count 10. So we'll start. Everybody with me. मुंह में हवा भरिए. Ten counts. Okay, one more time. जैसे आप 10 काउंट्स के लिए करोगे आपको हल्का हल्का ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर फील होना स्टार्ट हो जाएगा. विथ मी अगेन वन मोर टाइम विल डू. फिल इन एयर, मुंह में हवा भरिए. Relax. Relax. Loosen your muscles. Can you feel the blood circulation over here? So every day you have to do this exercise 5 times. Okay, 5 set करना है आपको, 10 counts each. Going to our second exercise, you have to make V with our fingers. ठीक है, दोनों इंडेक्स और मिडिल फिंगर से V बनाना है और आईब्रोज के एजेस स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे इसको प्लेस करेंगे ऐसे. ओके, एंड वी विल पुल आवर आईब्रोज डाउन. आईब्रोज को नीचे पुल करेंगे और आईज को ऊपर ऊपर की तरफ देखना है आपको. ठीक है, पहले आईब्रोज को नीचे पुल करेंगे. जस्ट सी मी वंस, देन यू कैन डू. पुल द आईब्रोज डाउन, लुक अप, रिलैक्स. वन मोर टाइम विथ मी. आईब्रोज के एजेस पे फिंगर्स रख दी एंड ट्राई टू पुल द आईब्रोज डाउन. ओके, एंड लुक अप. रिलैक्स. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू फॉर 10 काउंट्स. इससे क्रोज फीट, यहाँ पर जो आपके रिंकल्स आते हैं, स्लोली यूल सी इम्प्रूवमेंट इन दिस. ओके, एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज pout. We all do it for selfies. Let us do it for our exercise also. So we have to make a pout pose, pout face and hold for 10 counts. Okay, start. Relax. Relax your muscles. Can you feel the toning already? Repeat one more time. Relax. See, this is very good for toning of the face. Okay, facial muscles. Relax. Now one more major concern for all of us, for females as well as for males. बढ़ती उम्र के साथ डबल चिन आना. यहाँ पर सबके डबल चिन आने लग जाती है. So what we can do for that is very simple exercise. It is called the tall kiss. आपको गर्दन को ऊपर लेके जाना है एंड किस करते वक्त जैसा फेस बनता है वैसे बनाना है. So we all will do together. Take your neck up and make the kiss face. Relax. One more time. I'm sure everybody is enjoying this. Okay, let us do together. Inhale, look up, neck up and kiss. Relax. Last time with me. Inhale, take your neck up and make the kiss face. Relax. So did you feel the stretch in this entire region? Yes. Now the second exercise for this is, for double chin, is try to touch your tongue to the nose. आपको टंग को नोज की तरफ लेकर जाना है. ओके, एंड यहाँ पर आप हाथ रख के फील कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना स्ट्रेच आता है इस एरिया पे, चिन एरिया पे. लेट्स डू इट टुगेदर. स्टार्ट. Relax.
फेस योगा में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप फेस योगा करो आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आने चाहिए. ओके, वन मोर टाइम. सो इट्स प्रेफर्ड कि आप मिरर के सामने करो, बट वंस आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, तो आप इसे कभी भी कर सकते हो. किचन में, खाना बनाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, बर्तन, ट्रैवलिंग के वक्त, एनीवेयर. ओके, लेट्स डू इट वन मोर टाइम. टंग को नोज की तरफ लेके जाएंगे. Did you feel the stretch? Okay, very good. Relax. One last exercise for this double chin. दोनों हाथों की ऐसे मुट्ठी बना देंगे, चिन के नीचे रखेंगे. द रेजिस्टेंस एक्सरसाइज. सिर को, गर्दन को दिस फेस विल पुश डाउन और हाथों को ऊपर की तरफ. तो एंटी प्रेशर देना है, ठीक है. चलो, फेस को नीचे की तरफ पुश करेंगे और हाथों को ऊपर की तरफ. नकल से यू हैव टू पुश योर चिन अप. डू विथ मी एवरीबॉडी. रिलैक्स. सो यहाँ पर प्रेशर आया. Even if you hold it for 3 counts, it gives a lot of pressure. Repeat. We'll do it for 5 counts, okay? Relax. One more time with counts. Give anti-pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. So this will, अगर आप ये exercises daily करोगे, this will give you a lot of you will see the improvement yourself, but it takes time. Face yoga takes a lot of time. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-15 दिन करके आपको results दिखने शुरू हो जाएंगे. Okay, so moving on to our main issue with A, which is acidity. So a lot of females especially have this problem. तो इसके कई घरेलू नुस्खे तो है ही, like सौंफ एंड साखर या तेज पत्ते को रात को भिगो के उसका पानी पीना, all that stuff. बट योगा में कौन सा आसन है विच इज बेनिफिशियल फॉर एसिडिटी? बेस्ट इज मंडूकासन. इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव. सो वी ऑल विल डू इट टुगेदर. जस्ट सिट डाउन ऑन योर मैट. कम इन वज्रासन. आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर ऑफ वज्रासन. इफ नॉट, आई विल जस्ट शो यू वंस. आपको नीज पर बैठना है ऐसे, हिप्स को हील्स पर टिका के, दोनों टोज पीछे ऐसे टच होने चाहिए. ओके, toes will touch and your hips are lying on the heels. So we will sit in Vajrasan first and then दोनों हाथों को पेट पर रखना है, ठीक है. So your right hand, पहले राइट हाथ को नाभि पे रखेंगे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड. लंबा गहरा श्वास भरेंगे. पहले आप सब देख लीजिए and then you can, I'll show you one more time. लंबा गहरा श्वास भरे. इनहेल, पूरा श्वास छोड़ना है. एक्सहेल कंप्लीटली. पेट अंदर, पेट अंदर एंड देन स्लोली बेंड इन द फ्रंट एंड देन टेक योर हेड डाउन. जिनको नेक में पेन है, माइग्रेन इश्यूज है, तो वो लोग सिर्फ सामने देखेंगे, वो लोग सिर को जमीन की तरफ नहीं लेके जाएंगे. ओके, इनहेल एंड अप. वन मोर टाइम. यू कैन डू इट विथ मी नाउ. आई शो यू द साइड व्यू ऑल्सो. वज्रासन में बैठना है. राइट हैंड नाभि पे, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड. श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा. पूरा श्वास बाहर, श्वास छोड़े, पेट अंदर एंड देन सामने देखते हुए गो डाउन. ऑलवेज बेंड फ्रॉम योर वेस्ट. कमर से झुकना है हमेशा. गो डाउन एंड देन इनहेल एंड कम अप. नीचे जाके आप 5 काउंट्स तक रुक सकते हैं. अगर आपका श्वास बाहर की तरफ रुक रहा है, वेरी गुड, होल्ड इट आउटसाइड. अदरवाइज यू कैन डू नॉर्मल ब्रीथिंग. इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. ओके, एंड देन श्वास भरते वक्त कम अप. फाइन. सो एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट दिस? ओके, फाइन. लेट्स मूव अहेड. लेट्स कम टू बी. बी फॉर बैक पेन. लेडीज का सबसे बड़ा दुश्मन बैक पेन. सो ओके, बैक पेन के 3 लेवल्स होते हैं. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. नॉर्मल लैंग्वेज में लो, मीडियम एंड हाई. सो अगर आपको मीडियम से हाई वाला बैक पेन है, एनी ऑफ दीज 2, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. आपका डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट बताता है आपको, प्लीज फॉलो इट. टेक फिजियोथेरेपी. डोंट डायरेक्टली जम्प टू योगा. ओके, एंड अगर आपका माइल्ड बैक पेन है, जो नॉर्मली फीमेल्स में होता है विथ एज, तो यू कैन गो फॉर ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस.
बैक की जितनी भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस है, फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस तो हम लोग कर लेते हैं, बट ट्विस्टिंग वी यूजुअली स्किप द ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेस. So you can check my YouTube channel under the name Yoga and Prayogshala. Shruti di, can you please mention the link in the comment section? बैक पेन की जो मेरी एक वीडियो है उसमें ट्विस्टिंग की सारी एक्सरसाइजेस है, यू कैन फॉलो दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिनको मेजर बैक पेन है वो लोग भी एक पोज कर सकते हैं विच विल रिलैक्स देयर बैक कंप्लीटली. इट इज द ब्रिज पोज. ओके, सो आई विल शो यू वंस एंड देन यू कैन डू इट विथ मी. सेतु बंदासन in Hindi. So we'll do the bridge pose now. Just lie down on the mat, fold your legs और बैक को और हिप्स को आपको धीरे धीरे ऊपर उठाना है. ओके, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, डोंट कॉन्ट्रैक्ट योर शोल्डर्स. लेट्स डू इट. लाई डाउन, फोल्ड योर लेग्स, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे फ्लोर पर. ओके, हेड स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स. थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों में और नीज में. एंड इनहेल एंड टेक योर बैक अप. होल्ड हियर फॉर 5 काउंट्स. 1 2 3 4 5 एंड स्लोली कम डाउन. रिलैक्स. वन मोर टाइम. जिनको मेरे साथ करना है यू कैन डू इट विथ मी. लाई डाउन ऑन द मैट लाइक दिस. दोनों हाथों को साइड्स में रख देंगे फ्लोर पे, पाम टचिंग द फ्लोर. ठीक है, पैरों को फोल्ड कर दीजिए, नीज को. चलो, inhale and take your back up, hips up. Hold there, 5 counts. 1 2 3 4 5. Shoulders relaxed and down. Okay, cool. So this was one pose for back pain. अगर उठते हैं एक साइड करवट लेकर उठना है, डायरेक्टली नहीं उठना है. ओके, चलो. Now after back pain, coming to C, which is cramps in legs. Now a lot of people have cramps in their calf muscles, especially calf में. पैरों की ये जो पीछे का पार्ट है यहाँ पर calf पे क्रैम्प्स आते हैं और ज्यादातर रात को उनको क्रैम्प्स आते हैं, राइट. एंड दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से, एक ही पॉस्चर में ज्यादा देर तक बैठने की वजह से, एंड ऑल्सो ओवर एक्सरसाइज. सो आप ये मत समझिए कि आप बहुत एक्सरसाइज करते हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. ऑलवेज बी केयरफुल. प्रोपोर्शनेट करना चाहिए हर चीज को. ओवर अगर आप लेग्स पे स्ट्रेस डालोगे दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सो जब हमें क्रैम्प्स आते हैं, सो इन दैट कंडीशन द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट सोल्यूशन आई विल गिव यू. अगर आपके पास बैठकर एक्सरसाइज करने का बिल्कुल वक्त नहीं है तो हम लेडीज पूरा दिन घर में चक्कर काटते रहते हैं, राइट. ये रूम से वो रूम, किचन से हॉल, एक्सेट्रा. सो वॉट यू कैन डू इज डू हील वॉक. हील वॉक नहीं, घर में हील्स पहनकर नहीं घूमना है. आई जस्ट शो यू. यू हैव टू वॉक ऑन योर हील्स. सो इनिशियली अगर आपको आदत नहीं है यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर हैंड्स. हाथों को कमर पे रखेंगे जिससे हमारा बैलेंस बना रहेगा. एंड एड़ी के बल पे चलना है आपको ऐसे. कैन यू सी? ओके, एड़ी के बल आपको चलना है. प्रैक्टिस हो जाएगा तब नॉर्मली आप घर में हल्का फुल्का अगर सामान है हाथ में तो भी आराम से यू कैन वॉक ऑन द हील्स लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर टोनिंग द एंटायर लेग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डू वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस. आई विल शो यू. लेग्स के लिए टोज को स्क्वीज इन स्क्वीज आउट करेंगे 10 times. I will show you only 3 times right now. Squeeze your toes like this. Relax. Squeeze your toes. Okay, you have to sit in Dandasan. हाँ, by the way. Dandasan मतलब legs पूरे floor को touch होंगे. Knees will touch the floor. Back straight. Hands को hips के बाजू में रखेंगे. So this is the pose of Dandasan. इस pose में आपको toes को squeeze in, squeeze out. Can you see my toes? Squeeze in, squeeze out. Squeeze in tight. Relax. ये आपको 10 बार करना है. उसके बाद फीट को, पैरों को स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच इन. दोनों पैर एक साथ, नीज जुड़े हुए रहेंगे, दोनों पैर टच रहेंगे. ठीक है. सो आई एम डूइंग दिस. मैं हाथों का सिर्फ यूज कर रही हूँ बताने के लिए. आपको हाथ यूज नहीं करना है. हाथों से आपको सीधा बैठना है लाइक दिस, सपोर्ट लेके. सो फीट आउट, इन, आउट, इन. जब हम आउट करेंगे
तो ऊपर की तरफ स्ट्रेच आएगा। जब हम इन करेंगे ऐसे पैरों को, तब हमारी काफ में स्ट्रेच आना चाहिए। ओके, काफ एंड हैमस्ट्रिंग्स, ये पीछे तक थाइस तक स्ट्रेच आएगा। रिलैक्स। आफ्टर एवरी एक्सरसाइज रिलैक्स योर लेग्स कंप्लीटली। आफ्टर दिस यू विल डू ऑल्टरनेट। लेफ्ट पैर बाहर जाएगा, राइट पैर अंदर आएगा। चेंज चेंज। ओके, सो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू 10 टाइम्स। आफ्टर दैट दोनों पैरों को टच रखेंगे एंड रोटेट योर लेग्स लाइक दिस। ओके, so 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise you have to rotate. After this, relax, of course, relax your legs. Then दोनों पैरों में गैप करेंगे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा गैप रखना है एंड ट्राई करना है कि दोनों टोज आपके जमीन की तरफ टच हो। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स के बहुत इश्यू होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में, सो दिस इज वेरी गुड एक्सरसाइज। पहले आपको वो सारे लेग के वार्म अप वाली करनी है, उसके बाद क्रिएट अ गैप इन द लेग्स, टोज को फ्लोर की तरफ लाएंगे एंड देन बाहर की तरफ, फ्लोर की तरफ लाएंगे, अंदर बाहर की तरफ। ओके, आफ्टर डूइंग दिस फॉर 5 टाइम्स वी विल डू रोटेशंस इन द सेम पोज। ठीक है, पैर को पूरा आपको ऐसे रोटेट करना है, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स anti-clockwise. Okay, and relax. So this was with the legs. Let me see the time. Okay, so I can show you one more exercise for the legs. Kicking exercise, very simple and effective. दोनों हाथ कमर पे रखना है। आप किचन में काम कर रहे हो, whatever you're doing, you can do this exercise along with it. Just kick your hips with the heels like this. Kick. Yes, you can do it with me also. Abhi bhi, just kick your hips like this. So this is very good to release the tension in the legs. Okay? And if you want to strengthen your legs, you can also do front kicking. So you can take a prop for this. Okay. Initially आप एक prop ले सकते हो आपके हाथ में, कुछ भी ले लो, बेलन ले लो, whatever you have in your hands. And try to kick your knees to the object. Kick up. इसमें बैक स्ट्रेट रहेगा और शोल्डर्स को आपको झुकाना नहीं है. शोल्डर्स विल बी स्ट्रेट एंड किक अप. किक अप. तो शुरू में आपको यहां तक नहीं जाएंगे पैर. कीप इट डाउन लाइक दिस. किक किक. So this will strengthen your knees. Okay. This is a very good exercise for the knees as well. One more time. Kick. Kick. Okay, so this was front kicking and we did back kicking. Okay, relax. Chalo. Now the most common issue with everybody, बच्चे बड़े everybody, digestion. अच्छा, one thing I forgot, cramps जिनको ज़्यादा आते हैं पैरों में, you should drink a lot of water. Okay, and even now we are taking the alphabet D. D for digestion. All issues related to digestion, be it gas, constipation, acidity, जिनको भी ये ज़्यादा रहता है, drink lots of water throughout the day. आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी. ओके, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, फ़ोन में आप रिमाइंडर लगा के रख सकते हो, हर थोड़ी देर बाद ड्रिंक वाटर. ओके, एंड द बेस्ट पोज फॉर डाइजेशन, आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग दिस, बट जिनको नहीं पता है, इट इज़ पवन मुक्तासन. So पवन मुक्तासन is not for the stomach, only for the stomach. सिर्फ पेट में ही नहीं, वात जो होता है, गैस पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. सो समटाइम्स हमको नेक में पेन होता है, कभी पैरों में पेन होता है, गैस की वजह से भी होता है. सो पवन मुक्तासन से हमारी पूरी बॉडी की गैस रिलीज होती है. यू गेट लॉट ऑफ रिलीफ फ्रॉम द गैस इशू. सो लेट अस डू पवन मुक्तासन. Lie on the mat, एक साइड करवट लेके, fold both your legs like this. ठीक है, लंबा गहरा श्वास भरेंगे. Now this I am showing intermediate level. ये सबसे बेसिक लेवल है, बिगनर्स भी ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, लेग्स को फोल्ड कर दिया, knees को, take a long deep breath and
एक्सहेल, श्वास छोड़े, नीज को पहले सिर्फ अपने चेस्ट की तरफ लेंगे हम लोग, हाथ नीचे ही रखेंगे. देन इनहेल, श्वास भरे एंड इंटरलॉक योर हैंड्स, ऐसे पैरों की तरफ फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे. श्वास छोड़ते हुए लिफ्ट योर हेड अप. ना इसमें कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, हेड को ज्यादा ऊपर ले लेते हैं. नो, यू हैव टू पुश योर नीज टुवर्ड्स यू. आपको पैरों को आपकी तरफ पुश करना है, लाइक दिस. इनहेल, हेड डाउन. एक्सहेल, legs down slowly. Relax. Let me check the comments. Anybody? Okay. So I'm on the right track. Everybody is understanding. I'm audible. Once again, if anybody wants to do with me, you can try it out. Very simple, but follow the steps. एक साइड करवट लेकर go down on the mat. Legs are on the floor initially. लंबा गहरा श्वास भरे. Exhale. Bring your knees towards your chest. Okay. Interlock your fingers. Inhale, श्वास भरे. Get ready. Exhale, श्वास छोड़ते हुए पैरों को आपको सिर की तरफ लेना है. ओके. एंड शोल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, रिलैक्स करना है. इस एक्सरसाइज में आपको नेक पेन नहीं होना चाहिए. अगर आपको नेक पेन है तो यू जस्ट कीप योर नेक लाइक दिस एंड कीप मूविंग योर knees towards your body. Shoulders relaxed. पूरा श्वास बाहर and hold. Inhale, head down. Exhale, legs down. Okay. So this was Pavan Muktasan. In English it is called the wind relieving pose. Now coming to E. Now E is what I have stated, it is E stress. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेस. नाउ दिस इज अ न्यू टर्म नाउअडेज. ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेस पहले तो कभी था ही नहीं और अभी सबको है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर मिडिल एज से लेकर एडल्ट, मतलब बड़े बुजुर्गों तक, एवरीबडी हैज गॉट दिस ई स्ट्रेस. मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है आजकल. तो इसके लिए मतलब इसका मेन सिम्टम्स क्या है? आपका हेड, सिर भारी रहता है, शोल्डर्स में, नेक में, हाथों में स्टिफनेस फील होती है आपको. सो हाउ टू रिलीव दैट? इसकी बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो, जैसे नेक अप एंड डाउन, फिर हैंड्स की जो प्रेक्षा ध्यान में जो योगिक क्रियाज होती है, शोल्डर रोटेशंस, ये सारी आपको मेरे योगा फॉर बिगनर्स वर्कआउट जो है मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, उस वीडियो में आपको मिल जाएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल शो यू सम टू बेसिक एक्सरसाइजेस. जैसे अगर बच्चे हैं या इवन बड़ों के हाथों में पेन होने लगता है आफ्टर फोन, यूजिंग फोन, सो व्हाट यू कैन डू, सिर्फ हाथों को ऐसे सामने रखेंगे और हर फिंगर को अंदर की तरफ पुल करेंगे लाइक दिस. ओके. सो दिस विल रिलीज द एंटायर लाइक पेन इन द एंटायर हैंड. ओके. Sorry, one more time. Change the hand, one finger at a time. ये आप बच्चों को भी करवा सकते हो. Okay, all thumb. सारे fingers को आपको one by one you have to pull it inside. Can everybody do it with me one time? दोनों हाथ, लेफ्ट हाथ पहले सामने रखेंगे, one finger at a time. Take it inside like this. Thumb. रिलैक्स. राइट हैंड ऐसे सामने रख दिया, पुल योर फिंगर्स इनसाइड लाइक दिस एंड रिलैक्स. ओके. लूजन योर हैंड्स कंप्लीटली. इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है. वंस अगेन आई एम सेइंग, ये जो बेसिक शोल्डर रोटेशंस, रिस्ट रोटेशन, ये सब आपको कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा. एंड नाउ लेट अस वर्क ऑन दिस एरिया. ये एरिया बहुत फ्रीज हो जाता है मोबाइल्स और लैपटॉप्स यूज़ करने की वजह से, और ये बहुत कॉमन इशू है आजकल, स्पेशली कॉर्पोरेट फील्ड वालों के लिए. सो व्हाट यू कैन डू, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले लेंगे. ओके, लाइक दिस. ओके, एंड चेस्ट आउट, शोल्डर्स ब्रॉड, एंड स्लोली यू हैव टू टेक योर हैंड्स अप, क्रॉस ऐसे एंड डाउन. अगेन up
एंड डाउन। तो आपका जो ये पार्ट है ये कंप्लीटली ऐसे फोल्ड हो जाता है। आई शो यू द बैक व्यू। टेक योर हैंड्स लाइक दिस पीछे, एंड ये पोजीशन आपको होल्ड करके रखनी है। अप एंड डाउन, इनहेल अप एंड डाउन, रिलैक्स। इफ यू डू इट वन टाइम ऑल्सो यू विल फील द डिफरेंस। और एक बेसिक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ फॉर दिस शोल्डर स्टिफनेस। ये प्लीज जिनके भी बच्चे हैं उनको आप जरूर बताना ये एक्सरसाइजेस। नाउ आई एम यूजिंग अ वेरी लेस गैप। आपको एक दुपट्टा लेना है बड़ा सा, ठीक है? बिकॉज मेरा प्रैक्टिस है तो मैं हाथों को इतना ही गैप रख रही हूँ, आपको और ज्यादा गैप रखना है, ठीक है? हाथों को जितना हो सके दूर रखेंगे एंड स्लोली इनहेल, टेक योर हैंड्स बैक लाइक दिस, ओके, एंड फ्रंट। वन मोर टाइम आई शो यू। और इसमें आपको ऐसे नहीं कि हाथ पीछे लेके गए और एल्बोज बेंड करके यू आर गोइंग बैक फोर्सफुली। अगर आप फोर्सफुली जाओगे आपको इंजरी होने के चांसेस है। बहुत धीरे से जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना आपको पहले गैप रखना है, बहुत ज़्यादा गैप रखना है। दिस इज वेरी लेस, ओके? इनहेल करेंगे, हैंड्स अप, श्वास छोड़ते हुए स्लोली गो बैक, अगेन इनहेल, hands up, exhale, hands down, relax. One last time I'll show you. You have to do this very carefully, but it is a very effective exercise. Inhale करेंगे, hands up, slowly go back, exhale, elbow straight and in the front, relax. Now I'll give you some tips जो आप स्पेशली बच्चों को दे सकते हैं बिकॉज उनकी ऑनलाइन स्टडीज हो रही है। हर थोड़ी देर के बाद, बिकॉज बच्चे स्टेयर करके देखते हैं फ़ोन और लैपटॉप्स, तो उनकी आईज पे बहुत प्रेशर आता है, हेडेक स्टार्ट हो गया है छोटे छोटे बच्चों को। सो व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर एवरी टाइम टेल देम टू क्लोज देयर आईज। स्क्रीन से उनको नज़र हटानी है, साइड में देखना है, आंखें बंद करनी है, रिलैक्स, एंड देन ब्लिंक करना है, फास्ट ब्लिंक करना है आईज को लाइक दिस, देन अगेन क्लोज, रिलैक्स, एंड देन come back to the screen. Okay, all the mothers can try it with me. So you are looking at the phone currently, ठीक है? आपको स्क्रीन से फोन आईज हटानी है, आंखें बंद करनी है, रिलैक्स, एंड देन ब्लिंक योर आईज फास्ट 10 times. Again close your eyes, relax, again come back to the screen. Okay, so this is a very simple but effective technique. अगर हर 10-15 मिनट बाद बच्चे ये करेंगे तो उनको जो आई साइट और हेडेक के इश्यूज आजकल स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ फोन्स एंड लैपटॉप्स, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ओके, नाउ वन मोर टेक्निक, ये अडल्ट के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। हम हर थोड़ी देर में एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा या एनीथिंग फेसबुक पे, एंड विल टेक द फोन। इससे क्या होता है, सी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ओके, सो जब हम नॉर्मली हमारी बॉडी इज इन पैरासिम्पैथेटिक मोड, ओके, जैसे ही हमारा फोन बीप होता है, विल सी द फोन, तो हमारा तुरंत सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्लोली हमारा डाइजेशन धीरे धीरे वीक होता जाता है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम फोन्स यूज करना तो नहीं छोड़ सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज एटलीस्ट दिन में 1-1 घंटे के लिए वी कैन कीप आवर फोन्स असाइड, पर्स में या रूम में छोड़ दो फोन 1 घंटे के लिए, एंड आफ्टर 1 hour यू कैन गो एंड चेक योर फोन। यस, अगर किसी का कॉल आए तो आप रिसीव कर सकते हो, बट कीप इट अवे फ्रॉम यू फॉर 1 hour वेन एवर पॉसिबल। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेस। नाउ विल गो टूवर्ड्स F and G, फीमेल्स एंड गायनेक इश्यूज। जो भी लेडीज के साथ गायनेकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, इवन मेल्स हैव मेनी इश्यूज नाउअडेज, सो हाउ कैन वी ट्रीट देम? The best pose in yoga for the lower body, entire lower body, like reproductive and excretory system के लिए is the butterfly pose, तितली आसन।
Okay, so I'll show you the right technique for it. दोनों पैरों को अगेन दंडासन में बैठना है आपको, दोनों लेग स्ट्रेट, 1 by 1 एक एक करके आपको दोनों पैरों को ग्रॉइन एरिया के नजदीक लाना है. एंड डोंट फोर्स योर लेग. एक बार आप यहाँ तक लेकर आ गए, फिर आपको हाथों से जितना हो सके पैरों को अंदर खींचना है. ओके, सो मैन्युअली आपको ट्राई करना है कि पैर आपके नजदीक आ सके. ठीक है, एंड देन यू हैव टू इंटरलॉक योर फिंगर्स लाइक दिस. दिस इज वेरी गुड इवन फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा पोज है ये. एंड आपको ऊपर की तरफ फ्लाई करना है. विंग्स, दीज आर द विंग्स एंड यू आर अ बटरफ्लाई. यू हैव टू इमेजिन लाइक दैट. ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपका मूवमेंट रहेगा, आपको नीचे की तरफ नहीं पुश करना है. सी लाइक दिस, अप अप अप. ओके, सो आपका मूवमेंट शुड बी लाइक दिस अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओनली देन यू विल गेट द रिजल्ट्स. इफ लोग बोलते हैं मैं तो रोज करती हूँ बट नो रिजल्ट्स, कैसे होगा? यू डोंट हैव टू गो डाउन, यू हैव टू गो अप. अपवर्ड मूवमेंट करना है आपको. ठीक है, ये बहुत ही बेसिक टिप है, बट मैनी ऑफ द पीपल जो सालों से योगा कर रहे हैं, दे डोंट नो दिस. यू हैव टू टेक इट अप. ओके, रिलैक्स. सो दिस वाज द बटरफ्लाई पोज. सो ये बटरफ्लाई पोज हमारे जनरल हेल्थ के लिए, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, हमारे लेग्स की टोनिंग के लिए, थाइज के लिए बहुत अच्छा पोज है. नाउ कमिंग टू लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंस्ट्रुएशन के बाद जो के टाइम जो पेन होता है हमें, उस वक्त उस पेन में आप क्या कर सकते हो? सो वन वेरी इजी पोज इज शशांक आसन, जो हम जनरली भी करते हैं, बट उस टाइम पे आपको उसे सपोर्ट के साथ करना है. यू डोंट हैव टू डू इट डायरेक्टली. यू कैन यूज 2 pillows. आई जस्ट गेट 2 pillows एंड शो यू. ओके, सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पिल्लोज. आप वज्रासन में बैठ जाए पहले. ओके, 2 पिल्लोज को सामने रख सकते हो. ये पोज आप उस टाइम पर भी कर सकते हो. ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग द पेन. ठीक है, सो वी विल इनहेल, टेक आवर हैंड्स अप. एक्सहेल करेंगे, बेंड फ्रॉम आवर वेस्ट एंड गो डाउन. पिल्लोज पे हैंड्स को रेस्ट कर देंगे और सिर को साइड में ऐसे लेकर जाना है. एंड जस्ट रिलैक्स. ओके, इनहेल एंड कम अप. You can be there for 5 minutes, 10 minutes, जब तक आपको अच्छा लगे. You can stay in that position. अगर किसी को हाथ ऊपर लेकर जाकर इतना बेंडिंग और ये नहीं करना है, तो they can just slide your hands on the pillow. हाथ रख दिए पिल्लो पे and slowly go down and rest your head on the pillow and just relax there. Normal breathing करनी है. Okay? सो दिस पोज इज वेरी गुड फॉर, जनरली भी बहुत स्ट्रेस होता है बॉडी में, माइंड में, उस वक्त भी आप ये पोज कर सकते हो. यू इमीडिएटली फील रिलैक्सेशन. एंड विपरीत करनी मुद्रा. विपरीत करनी इज लेग्स अप द वॉल. ये पोज इज ऑल्सो, दिस पोज इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव. इट इज देयर इन माई यूट्यूब चैनल योगा फॉर रिलैक्सेशन. तो ये जो पोज है ये भी आप उस वक्त कर सकते हो, और अदरवाइज भी व्हेन यू आर वेरी टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड आउट. इनफैक्ट डेली आपको वो पोज करना चाहिए, लेग्स अप द वॉल. सो यू आर लाइंग ऑन द लाइक फ्लोर और आपके पैर पूरे दीवार पर रहेंगे. ठीक है, यू कैन चेक दैट पोज इन माई वीडियो. एंड नाउ आई विल शो यू वन मोर पोज जो आप पीरियड्स के वक्त कर सकते हो. ठीक है, व्हेन यू आर हैविंग दैट पेन, उस वक्त आप कर सकते हो. सो जो बटरफ्लाई पोज हमने अभी सिटिंग पोजिशन में किया था, सेम पोज वी विल डू इन द लाइंग पोस्चर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुप्त बद्ध कोणासन. सो बट वी विल डू इट विथ पिल्लोज. ओके, सो वी विल फर्स्ट सिट. ओके, एंड एक साइड करवट लेकर हम सो जाएंगे, लेट जाएंगे. आफ्टर दैट कीप 2 pillows ऑन ईच साइड. आपकी बॉडी के दोनों साइड में आपको पिल्लोज रखने हैं. ठीक है, सो एक साइड लेटना है, ये आप बेड पे भी कर सकते हो. ठीक है, एंड देन दोनों लेग्स जॉइंट है, आपके नीज फोल्डेड है, और आपको आपके पैरों को ओपन करना है लाइक दिस. नीज के नीचे पिल्लो रखेंगे अपन, पैरों के नीचे पूरे पिल्लोज है. एंड जस्ट कीप योर हैंड्स
on the stomach, eyes closed, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay, this is the best pose. तो आपके सिर्फ बेसिकली आपको नीज ऐसे ज्वाइन करना है एंड धीरे धीरे ओपन करना है. अगर आपके पैर यहाँ तक ही पहुंच रहे हैं, यू कैन कीप वन मोर पिलो ओवर हियर. तो आपको पिलो की हाइट बढ़ानी है, ठीक है. एंड जस्ट ओपन योर लेग्स लाइक दिस. हाथों को पेट पर रखना है, आईज क्लोज, इनहेल, stomach out, exhale, stomach in, inhale, exhale, relax. So ये pose शशांकासन with the pillows and सुप्त बद्धकोणासन, ये दोनों poses आप pillows के साथ बेड पर भी कर सकते हो. स्पेशली जिन मॉम्स को डॉटर्स है एंड दे आर सीइंग दिस वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अब गर्ल्स की आदत होती है कि पेन किलर्स ले लेते हैं उस टाइम पे. नो, टेल देम टू डू दीज पोजेस. स्पेशली शशांकासन में उनकी जो एंग्जाइटी होती है उस वक्त, उसमें भी उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा. ओके, नाउ कमिंग टू एच. सो एच इज़ फॉर हेडेक. सो एज आई टोल्ड अर्लियर, बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, समटाइम्स बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ माइग्रेन इश्यूज, हेड में बहुत हैवीनेस होता है. सो व्हाट इज एन इंस्टेंट क्या एक इंस्टेंट टिप है ऑफ योगा फॉर दिस, जो बेसिक आप कहीं पर भी कर सकते हो. आपको हल्का हल्का सिर दर्द हो तो यू कैन डू इट एनीवेयर. ओके, फिंगर्स से आपको स्कैल्प पर ऐसे रखना है, ठीक है. फिंगर्स रख दी स्कैल्प पे एंड इमेजिन दैट आप अपने स्कैल्प को होल्ड कर रहे हो. होल्ड करके आपको घुमाना है उसको 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. प्रेशर देके रिलैक्स. चेंज द हैंड, अगेन होल्ड द स्कैल्प. फिंगर्स से आपको टाइट एकदम प्रेशर देना है एंड रोटेट द स्कैल्प लाइक दिस. 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. जब आपको हल्का हल्का सिर दर्द होने लगे तभी आपको डू दिस एंड रिलैक्स. ओके, वन मोर टाइम, एवरीबडी डू दिस विद मी एंड आपको इमीडिएट यू विल फील द डिफरेंस. फिंगर्स से प्रेशर देना है सिर पे ऐसे स्कैल्प पे. इमेजिन दैट आप स्कैल्प को पकड़ के उसको घुमाना है आपको, ठीक है. 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 4, 5 एंड यू कैन चेंज द हैंड और यू कैन यूज द सेम हैंड एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4 एज इफ यू आर रोटेटिंग द स्कैल्प अंदर से. 5 एंड रिलैक्स. द मोमेंट यू डू दिस, आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, तुरंत आपको टैप करना है ऐसे सिर को and relax the entire head. Okay, immediately relax the entire head like this. Okay, so can anybody share their experience? How was this? Did you try this? You can tell your experience. You immediately feel the relaxation. So इसके भी आपको 5 सेट्स करने हैं. ओके, मिनिमम यू हैव टू डू इट 5. जब आपको माइल्ड हेडेक स्टार्ट हो जाए उस वक्त ही. एंड यू कैन ऑलवेज मसाज दीज पॉइंट्स. आई विल टेक अप दैट ऑल्सो. ये जो फिंगर्स है आपको आईब्रोज के एजेस पे, यहाँ पर जहाँ खत्म होता है और नोज के टिप पे, यू हैव टू प्रेस ओवर लाइक दिस. 1 फिंगर, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स. ओके, ओके, नाउ एवरीबडी कैन स्टॉप कमेंटिंग एंड ट्राई दिस विद मी. चलो, इंडेक्स फिंगर्स को यहाँ पर रखना है. वेरी गुड सुचिता जी, थैंक यू सो मच. यू फीलिंग रिलैक्स, आई एम ग्लैड. चलो, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स, प्रेस, रिलैक्स. सो दीज आर ऑल द प्रेशर पॉइंट्स. हम तुरंत पिल्स ले लेते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है, मेरी भी थी, बट नाउ इवन आई विल ट्राई टू practice these exercises before taking the pill. Okay, so and again these are also the points. We can press them fingers से ऐसे eyebrow के ऊपर. Press, relax, press, relax, press, relax and rotate here. ये जो पार्ट है यहाँ पर हमारे lymph nodes रहते हैं. So see again, press, press, press and rotate here. Okay, one more time we will do press, press, press and यहाँ पर आके rotate and also the under eye area. So we will press like this, press, 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 press and rotate. One more time, press, 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 press and rotate.
रिलैक्स। एंड यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये जो खड्डा जैसे होता है यहाँ पर, इसके बाजू में एक एकदम डेलिकेट एरिया है, जो आप प्रेस करोगे तो आपको पेन होगा। सो यू हैव टू फाइंड दैट पॉइंट एंड आपको यहाँ पर प्रेशर देना है, रिलैक्स, प्रेशर, रिलैक्स। यू कैन ट्राई इट विथ मी, गिव प्रेशर and relax, again pressure and relax, pressure and relax. Just relax your entire area, close your eyes for 2 minutes, just for some seconds, and relax. Okay everybody, now we are almost towards the end of this session.